الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ پہلا ہے الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ اور اس کی آیت نمبر 41 کا یہ آخری حصہ جو ہے آیت کا، اس پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد پاک ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ فَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اس کا ترجمہ اور مجھے سے ڈرو، اور یعنی جو فرمایا گیا کہ مجھ پر ایمان لیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یعنی قرآن پاک جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں کم قیمتوں میں اللہ کی آیتیں فروخت مت کرو، بدلو نہیں۔ یہ ساری باتیں تفصیل سے ہم نے پیچھے کی ہیں، اور پھر ارشاد ہوا مجھے سے ڈر وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ جب آپ اس پر غور کریں گے تو ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھے سے ڈرو۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرما رہا ہے مجھے سے ڈرو۔ اب اگر کوئی لائق مند صالح اولاد بیٹا بیٹی اپنے والد سے ڈرے، ان کا ادب و احترام کرے، ڈرے کہ ان کے سامنے کوئی غلط بات نہ ہو، آواز اونچی نہ ہو، تو یہ تو پھر قرآن کے خلاف ہو گیا نا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے سے ڈرو، اور ہم اپنے والد سے بھی ڈر رہے ہیں، امی سے بھی ڈر رہے ہیں، بڑے بھائی سے بھی ڈرتے ہیں، رشتہ دار میں جو بڑے بزرگ ہیں ان سے بھی ڈرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، تو پھر شرک کر دیا ہم نے۔ تو گھبرائیے مت، یہ بالکل شرک نہیں ہے، ہمارے لیے تو بالکل نہیں۔ یہ میں نے ان کے لیے کہا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد چاہیں پھر تم دوسروں سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ تو وہی قرآن میں جب تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ سے ہی مدد چاہنا ہے کا حکم اللہ نے دیا ہے، پھر دوسروں سے مدد مانگنے پر تم شرک کے پتے لگاتے ہو، تو یہاں پر اللہ نے حکم فرمایا مجھے سے ڈرو، تو پھر ماں باپ سے ڈرنے پر شرک کا حکم کیوں نہیں لگاتے؟ تو صاف ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے جو مدد مانگی جا رہی ہے وہ حقیقی مدد ہے، اللہ کو خالق حقیقی سچا، یعنی اپنی ذات سے خود ہی مدد کرنے والا ہم اللہ کو مان کر اس سے مدد چاہتے ہیں، اور دوسرے جو اس کے بندے ہیں جو اللہ کے نیک بندے، جو مقرب بندے، ان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اللہ عز و جل کی عطا سے دی گئی ان کی طاقت سے، ان کی اللہ کی دی گئی قدرت سے ان سے مدد مانگی جاتی ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہاں پر اللہ سے ڈرنے کا جو حکم ہے وہ کہ اللہ عز و جل حقیقی معبود ہے، اس سے معبود مان کر، رب مان کر اس سے ڈرنا ہے، اور ماں باپ سے، بھائیوں سے، بڑوں سے، بزرگوں سے جو ڈر ہے وہ اللہ کے بندے مان کر ہے۔ جب وہاں یہاں شرک نہیں تو پھر وہاں شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات بس ذہن میں آئی تو میں نے عرض کر دی، یعنی دیوبندی مذہب، وہابی مذہب جو ایسا ہے کہ جس میں کوئی سر پیر ہے ہی نہیں، ان کی جو شرک کی گن ہے، اگر اس کو شرک کی توپ کو جب اگر ہم دیکھیں تو پھر جو جس طریقے سے وہ شرک کے فتوے لگاتے تو پھر کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ ایسے برے مذہب سے ہمیں بچائے رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلک اعلی حضرت، مسلک اہل سنت پر قائم و دائم رہیں، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اس کے پہلے کی آیت میں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، آیت پاک، اس کے بعد پھر آخر میں ارشاد ہوا وإیایا فارہبون، یہاں فرمایا جا رہا ہے وإیایا فاتقون، وہاں رہبانیت، یہاں تقوی،
یہ क्यों? हालांकि दोनों का माना यही है, मुझसे डरो, और अल्फाज अलग अलग क्यों इस्तेमाल किए गए? तो ये कुरान पाक है, ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं। यहाँ पर जो अल्फाज लिखे गए हैं, जो अल्फाज जो इरशाद फरमाए गए हैं, जो अल्फाज आए हैं, जो जुमले आए हैं, एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज, एक एक जुमला बिल्कुल हक है। इस पर भी उलमा ने, मुफस्सिरीन किराम ने बड़ी प्यारी बातें अर्ज की हैं कि वहाँ फरहबून रहबत का जिक्र किया गया, यहाँ तकवा का जिक्र किया गया है, फत्तकून फरमाया गया। वजह क्या है? तो कुछ बातें हैं जो तफसीर नईम में, तफसीर रूहुल बयान, तफसीर कबीर के हवाले से नकल फरमाई मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। और चंद बातें अर्ज कर दूं। पहले तो ये कि रहबानियत जो है ये सुलूक की मंजिल का पहला दर्जा है, फर्स्ट लेवल है, लेवल 1 है। ये इंसान जब रब अज़्ज़ वजल की बारगाह की तरफ बढ़ रहा है, कुर्ब खुदाबंदी की तरफ बढ़ रहा है, तो उस कुर्ब की जो मंजिल जो शुरुआत हुई है उसका ये पहला दर्जा है रहबानियत, रहबत। और तकवा जो है ये आखिरी दर्जा है। तकवा इसकी इंतहा है, वो इब्तिदा है और ये तकवा इंतहा है। तो वहां पर आम लोगों से, आम यहूदियों से खिताब हुआ था, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ए यहूदियों। तो आम लोगों के लिए पहले दर्जे का खिताब किया गया, फरहबुन ओया या फरहबुन फरना, तो पहला दर्जा। अब यहां पर जो खिताब है वो उलमा से है, बनी इसराइल यहूदियों के उलमा से खिताब हो रहा है। तो आम लोगों के लिए पहले दर्जे का खिताब किया गया, पहले दर्जे का हुक्म दिया गया। और अब आलिमों को या फत्तकून, आखिरी दर्जे का, कमाल दर्जे का जो आखिरी मंजिल है उसका हुक्म दिया जा रहा है। कि आम लोग, इनका डर जो है ये आम लोगों की तरह, लेकिन ए आलिमों, ए जानने वालों, ए पढ़े लिखे लोगों, ए तौरेत के पढ़ने वाले, कुरान के जानने वालों, तुम्हारा तकवा, तुम्हारा डर तो बहुत ऊंचा है। तो तुम्हारा ऊंचे दर्जे का जो डर है, तो वो डर, वो खौफ, वो अल्लाह की जात से, वो तुम्हें जो डर होना चाहिए वो आखिरी दर्जे का होना चाहिए। और इसीलिए वो आखिरी दर्जे का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया गया। वहाँ आम लोगों के लिए फरहबून, यहाँ उलमा के लिए, खास लोगों के लिए फत्तकून। सुभान अल्लाह, एक ही जुमला, एक ही माना, लेकिन अल्फाज अलग अलग लाकर कितनी प्यारी बात की गई। फिर और फरमाते हैं कि रहबानियत जो है ये यहूदियों का लफ्ज है, यहूदियत का लफ्ज है, बनी इसराइल का लफ्ज है। इसलिए आप अगर किताबें वगैरह पढ़ेंगे तो आपको हर जगह यही मिलेगा कि बनी यहूदियों के राहिब, कहीं भी कोई जिक्र आएगा तो राहिब कर जिक्र आएगा। राहिब, वो लोग अपने बड़े आलिमों को, बुजुर्गों को राहिब कहा करते थे। रहबानियत यहूदियों का लफ्ज है, तो वहां यहूदियों से खिताब हो रहा था, तो इसलिए यहूदियों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, फरहबून। अब यहाँ पर जो खिताब हो रहा है, आयत पाक क्या है? वआमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम। कुरान पाक पर ईमान ले आए तो क्या बन गए? मुसलमान बन गए। यहूदियत छोड़ दी, इस्लाम में दाखिल हो गए, इस्लाम के मानने वाले बन गए, मुसलमान बन गए। तब वो जब यहूदियत में थे तो रहबानियत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, रहबानियत के बारे में कहा गया। अब इस्लाम में दाखिल हो गए, अब इस्लाम के मानने वाले बन गए, मुसलमान बन गए, तो अब इस्लाम का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, रहबानियत नहीं, बल्कि अब मुत्तकीन का लफ्ज, तकवा का लफ्ज इसलिए फरमाया गया, वैया फत्तकून। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है कि यहूदियत में थे तो रहबानियत का, यहूदियों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। इस्लाम में दाखिल हो गए तो इस्लाम में जो लफ्ज है वो लफ्ज इस्तेमाल किया गया। यहाँ से ये पता चला कि जो भी मुसलमान हो रहा है, जो पैदा हुए मुसलमान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर जो नौ मुस्लिम जिसे कहा जाए, अक्सर लोग नॉन मुस्लिम कहते हैं, नॉन मुस्लिम नहीं, नौ मुस्लिम लफ्ज है वो, नौ मुस्लिम जो किसी दूसरे मजहब से इस्लाम में दाखिल हुआ, तब वो ऐसा दाखिल होना है उसे कि पीछे की सारी, उस मजहब की सारी चीज़ों को छोड़ना है। अरे एक लफ्ज तक अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं फरमाया, तो फिर तुम कैसे अपने नाम के साथ में वो अपने मुशरिकाना, जो तुम्हारे उस वक्त की जो सरनेम थे तुम्हारे, तुम वो उसे कैसे यूज कर सकते? नहीं यूज कर सकते।
दाखिल हो गए इस्लाम में तब इस्लाम के अल्फाज इस्तेमाल करने होंगे, पुराने अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस्लाम में दाखिल होने वालों को यह हुक्म दिया है कि इस्लाम के तरीक़े, इस्लाम के अल्फाज इस्तेमाल करना, अल्फाज इस्तेमाल करने में भी इस्लाम का जो तरीक़ा है वो इख्तियार करना है। तो आज जो लोग ये कहते फिरते हैं राम रहीम में अंतर नहीं, अल्लाह कहो भगवान कहो सब एक है, माअज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सही नहीं है, गलत है। अल्लाह अल्लाह है, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। कि जो ये कहे कि सब अल्लाह भगवान राम रहीम सब एक है, माअज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, गलत है। आजकल पता नहीं डर के, आजकल क्या बहुत पहले से चला आ रहा है, डर बैठा हुआ है। अल्लाह से डर की जगह वैया या फत्तकुन पर अमल ही नहीं रहा, लोगों से डर रहे हैं। ये आयत पाक में यही कि लोगों से मत डरो, या फत्तकुन, मुझसे डरो, लोगों का डर मत रखो, इस्लाम पर मजबूती से कायम रहो। आज वो डर, अल्लाह का खौफ दिल से निकल गया तो सारी दुनिया डरा रही है, सारी दुनिया में हर कोई आकर हमें डरा कर जा रहा है, क्योंकि हमारे दिल में असल खौफ ही नहीं है, या फत्तकुन पर अमल ही नहीं, अल्लाह का डर ही नहीं। हक बात बोलने से कतरा रहे हैं, बोलने की ताकत में राम रहीम सब एक है। अरे कहाँ से एक है? अल्लाह अज़्ज़ तो फरहबून वहाँ छोड़ दिया गया, यहाँ फत्तकुन इस्तेमाल करने का हुक्म इस्तेमाल किया जा रहा है। परवरदिगार ने एक लफ्ज़ तक इस्तेमाल नहीं किया। तुम कहते हो कि अल्लाह कहो भगवान कहो सब बराबर है, नहीं चलेगा। अल्लाह अल्लाह है अज़्ज़ व जल। और भी जो कैसे भी माने, हम पर कोई, वो उनका मजहब हो जाने, हमारा मजहब हमें ये कहता है कि हम अल्लाह अज़्ज़ व जल को अल्लाह कह कर ही पुकारें, हम दूसरे अल्फाज से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये भी यहाँ पर ये सबक मिला है इस आयत पाक के इस टुकड़े से। यह हमारे उलमा किराम पर अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए कि इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी बारीक नुक्ते ढूंढ कर अल्हम्दुलिल्लाह बयान फरमाते हैं ताकि हम सीख सकें, हम जान सकें। पर हमें सीखना कहाँ है? हमें तो बस पैदा हो गए मुसलमान हो गए, बस हम मुसलमान हैं। हकीकत जो इस्लाम के बारे में इल्म हासिल करना, वो तो बैठ करके आलिम लोग, मौलाना लोग पढ़ेंगे, वो लोग करेंगे, उनके लिए बस, हमको थोड़ी सीखना। तो अल्लाह हमें सही इल्म हासिल करने की सादत नसीब फरमाए, तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक फर्क और था कि रहबानियत कहते हैं किसी खतरे की चीज़ के अंदेशे से डरने को कहते हैं रहबानियत, और तकवा कहते हैं किसी खतरे की चीज़ के यकीन से, कि यकीन को जान लेने को, यहाँ खतरा है इस बात का यकीन जो हो, उसको कहते हैं तकवा। किसी ने ये कहा कि भाई फलां जगह सांप है, उसे अंदेशा है, सिर्फ डाउट है, उस डाउट से डर गए, तो ये रहबानियत। एक मिसाल दे रहा हूँ, अब अगर किसी ने सांप को देख लिया, अरे ये तो सांप है वाकई में, हकीकत में यकीन हो गया उसे, और उस सांप से डर कर हट गया, पीछे उस जगह से नहीं जा रहा, दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया, तो वो यकीन जो है वो तकवा। ये भी एक फर्क है कि रहबानियत जो है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के अज़ाबात के होने के अंदेशे को कहा रहबानियत, और तकवा मुत्तकीन वो कि जिसे यकीन हो कि अगर मैंने गलत काम किया तो अल्लाह मुझे सज़ा देगा, अगर मैंने सही किया तो अल्लाह मुझे जज़ा अता फरमाएगा, इस यकीन के रखने वाले को कहते हैं मुत्तकी। तो यहाँ पर यही फरमाया गया, इत्तक़ून, ऐसा यकीन वाला डर रखो मेरा कि तुम्हें पूरा यकीन हो कि अगर तुमने गलत काम किया, कुफ्र किया, शिर्क किया, बुराई की, मासियत की, गुनाह किया, तो तुम्हें यकीनन सज़ा मिलेगी। इस बात का यकीन रखते हुए मेरी इबादतें करो, तो उसे फरमाया गया फत्तकून व इय्याया फत्तकून। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बातें मैंने अर्ज की हैं, फरहबून और फत्तकून क्या फ़र्क है, वो चंद एक बातें मैंने अर्ज की। बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ है, ये तो अल्लाह, अभी तो 2 महीने बाद मैंने ये सिलसिला फिर शुरू किया, लगभग 2 महीने पड़े। बस दुआ करें अल्लाह अज़्ज़ व जल सारे मामलात आसान करे, आसानी अता फरमाए, मुश्किलें दूर करे, मेरी भी आपकी भी सबकी परवरदिगार मुश्किलें दूर फरमाए, और कुछ मैं कर सकूँ। ये जो कोशिश की है, ये तकरीबन 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करा रहा है, परवरदिगार इसे कबूल फरमाए और आगे करने की सादत नसीब फरमाए। आप सबसे इल्तिजा है कि इसे खूब आम करें, खूब शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि आपके लिए और मेरे लिए सवाब जारिया का सबब बन सके, रास्ता बन सके। परवरदिगार हमें हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और खूब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर आयत नंबर 41 मुकम्मल हुई।